Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography and what is our topic today? Economics is the most important condition of the Gupta Empire. The, the period from the Silica is the 4th century for the 8th century was a period of great agricultural expansion. The vast area of the land were brought the under cultivation and improvement were made in the settings of method of production to the attain of the higher years. One of the reason for it was the practice of the granting and the land of the Brahmans and scholar is the officer in the different area. It's a help in the wearings of virgin land under to the plug. In the planking, there is the spirit of their knowledge and regarding their use of iron plug and the share, manure, irrigations and the is a preservations of cattle wealth in the backward area also is a contribute to the ruler is a property and it however to the brought no relief to the peasant and the who is a continue to the suffer remembrance tax or burden. That is the most important here this time of farmer they are going to suffer a tremendous tax of burden. The Gupta and the post-Gupta is a period that witnessed as a competitive decline in the country as a trade and the commerce. Till AD of 550s, India is continued to have some trade with the Eastern, the Roman Empire to which is the exported a silk and the spicy. Around the 6th century, there is a Roman learned the art of the raiding silk bomb. A bomb there is the most important here. And this advice really is affected in the India as a foregone trade in the precarious or commodity and the description on the northern western route by the Hussons was another factor for the decline. India tried to the make up to the loss by carrying on the trade with the Southeast Asia countries and but it did not be held to the revive there is economical substance in their loss in the trade lessened and the inflow of the gold and silver into the country. It is a confirmed by the general scarcity of the gold coin after the Gupta. The Gupta did issue the large number of gold coins called the dinars. There is the most important. The large number of gold coin is a issue. There is called to the dinars. But we have noticed that the gold coin of each successive Gupta ruler after the Chandragupta II contain less of gold and more of alloys. There is the most important of the Chandragupta II that contain less of gold and the more of alloys. After the Gupta is very few coins of king of different than centuries has been found. Thus is the absence of the conic as we as a presume that is a self-sufficient economical system with a limited trade and prevailed after the downfall of the Guptas. यदि बात यहाँ पर हम करें गुप्ता वंश के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की तो अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी उस समय अधीन में कहते हैं अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था भी जो होता है किसी भी राज्य को समृद्ध बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं अगर अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलाया गया अगर सही नहीं है तो कोई भी राज्य का जो है डिक्लाइन यानी खत्म होना पतन होना स्वाभाविक बात बना देती है। तो उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी ये जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। कहते 14वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी का काल एक महान कृषि विस्तार का युग माना जाता है। भूमि के बड़े क्षेत्र पर जुताई आरंभ हुई तथा जो है उच्च परिणाम प्राप्त करने हेतु उत्पादन के तत्कालीन जो है उपलब्ध तरीकों में सुधार किए गए और इस सुधार का एक मुख्य कारण ब्राह्मणों तथा गैर धार्मिक कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में भूमि दान करने की परंपरा रही। कहते हैं उस समय ब्राह्मण को जो है आम आदमी में भी जो है भूमि दान करने की प्रवृत्ति थी। राजा तो किया ही करते थे बट आम व्यक्ति भी जो है ब्राह्मणों को भूमि दान किया करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आती है। इससे बिना काम वाली जो है भूमि को भी कृषि के योग्य बना दिया करते थे। लोहे वाले हल जो है गोबर की खाद सिंचाई तथा जो है पिछड़े क्षेत्रों में पशुधन संरक्षण से ग्रामीण संपन्नता में अपना जो है सहयोग भी दिया करते थे। यद्यपि कर्ज से पीड़ित किसानों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन जो कर्ज से पीड़ित व्यक्ति थे उनको क्या लाभ होगा। किसान को यहाँ पर दशा जो थी
और जो है बेहतर से बेहतर हो गई, यानी खराब से खराब होती चली गई। कहते हैं गुप्त तथा जो है गुप्तचर युग में व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में पतन हुआ, यानी इस समय देखा जाए तो व्यापार और वाणिज्य जो बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पे थी। सन जो है 550 तक भारत में पूर्वी रोम साम्राज्य के साथ व्यापार संबंध थे। जब भारत मसालों का रेशमी का निर्यात किया करता था तो 6वीं शताब्दी के लगभग रोम नागरिकों ने रेशम के धागे बुनने की कला को भी सीख लिया। इस विषय वस्तु उत्पादन क्षेत्र में विदेशी व्यापार को इससे काफ़ी ठेस पहुंची। हुनों द्वारा उत्तर पश्चिमी मार्ग पर अवरोध उत्पन्न करना भी इस पतन के घटकों में रहा। भारत ने इसकी क्षतिपूर्ति जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ वाणिज्य संबंध बनाकर करनी चाहिए, किंतु इससे जो है अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सहायता प्राप्त नहीं हुई। कहते हैं एक बार अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है, दोबारा उसको जीवित करना बहुत ही कठिन हो जाता है। निम्न व्यापार ने देश में सोने तथा चांदी की आपूर्ति पर भी काफ़ी असर डाला। इसका प्रमाण जो है गुप्त काल के पश्चात स्वर्ण की कमी से मिलता है, जिसमें स्वर्ण की जो है पूरी तरह से जो है सिक्के हमें प्राप्त नहीं होती है, यानी उसमें अलॉयस मिलाया गया है, मिश्र धातु जो है मिला के बनाई जाती है। तो इससे पता लगता है कि उस समय जो है गुप्त वंश के काल के अंतर्गत उनकी अर्थव्यवस्था जो थी बिल्कुल ही जो तरमरा सी गई थी। इस बात के लिए जो है गुप्त शासकों द्वारा बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्रित चलन प्रचलन में लाई गई थी, जिन्हें दिनार कहा करते थे, यानी वो जो था उस समय दिनार के रूप में प्रचलित हो गया। किंतु चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात हर गुप्त शासक के शासनकाल में जो है स्वर्ण मुद्राओं में सोने की तुलना में मिश्र धातु की अधिकता रही। यानी देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के पश्चात जितने भी आगे आए सब में मिश्र धातु का उपयोग करने लगे। यानी गुप्त वंश के उपरांत कुछ ही वंशों के समकालीन सिक्के प्राप्त हो पाए हैं। सिक्कों की जो है अनुपलब्धता से यह समझा जा सकता है कि गुप्तों के पतन के पश्चात एक सीमित व्यापार वाली अपने में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो है उदय हुआ था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात की ओर संकेत करता है। और इन्हीं कारणों से जो है गुप्त वंश का जो है पतन होना स्वाभाविक बात था। कहते हैं अर्थव्यवस्था किसी भी देश के लिए, किसी भी काल के लिए, किसी भी समय के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान होता है, और वो जो है डिक्लाइन हो जाना इसका मतलब है कि जो है संतुलन का भी विघटन होना स्वाभाविक बात बना